Hello students, I am again here to explain one more important question in data structures. Draw adjacency matrix and adjacency list for given graph. See, graph is a data structure. It is a non-linear hierarchical data structure where nodes or vertices are connected with each other through edges. We represent graph like this. Graph is a collection of vertices and edges. Vertices is nothing but the set of nodes, like here A, E, B, C, D are the vertices, and the links between these vertices are nothing but edges. Getting? Now there is always question in university exams like draw adjacency matrix and adjacency list for given graph. That is actually the representation for graph. Two types of representations for graph. First one is adjacency matrix, where we represent that graph with the help of matrix, and adjacency list means here we are just combining multiple linked lists together. Now here I am going to explain this adjacency matrix and list representation with the help of this given example. Here there are multiple vertices like A, B, C, D, E, and these are the edges, like A, E is the edge, A, B is the edge. This graph is undirected graph, means there is no any direction given. That's why if you are considering any edge like AE or EA, you can consider like AE or EA anything, because these two are representing the same edge. Okay, there is no any direction between two vertices. Now how to draw adjacency matrix for this one? See, here the matrix will be of dimension like number of vertices, like here number of vertices are 1, 2, 3, 4, 5. So you have to draw 5 by 5 matrix here. Now each and every row or column indicate the vertex here. Now here the vertices are A, B, C, D, E, and edges again vertices like A, B, C, D, E. तो रो के लिए भी A, B, C, D, E आपको लिखना है, कॉलम के लिए भी A, B, C, D, E लिखना है, बिकॉज वी ऑलवेज रिप्रेजेंट एज लाइक A, E. तो टू वर्टाइसेस के बीच में अगर एज है तो वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग रो एंड कॉलम. ओके, तो हाउ टू ड्रॉ दिस सिंपल 5 by 5 matrix? We have each row and column will indicate the vertex. Now here from A to E there is a vertex, so just write here 1, A to E. Then A to B again there is a vertex, so write 1. A to A नहीं है क्योंकि A to A will be there whenever there is a loop. Okay, self loop अगर है like this. Suppose there is a to A edge present, then that is nothing but a loop. ओके पर अभी यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर A to A 0 आएगा. A to B है, A to C है क्या? देखो नहीं है तो 0. A to D है क्या? नहीं है तो 0. A to E है क्या? यस है. तो एडजेसेंट नोड्स जो भी रहते हैं उनके बीच में एज रहेगी इन अनडायरेक्टेड ग्राफ. देखो B से A है, C है और D है, तो B से A है, C है और D भी है और बाकी के 0. नेक्स्ट वन CB is the edge, CD is the edge. तो CB is the edge, CD is the edge, उसके लिए 1 कर दो. Other entries will be 0. Now next one is D. D से C तक एज है, D से B तक एज है, तो हमें C और B के लिए यहाँ पर 1 लिखना है और बाकी के एंट्रीज 0 है. नाउ नेक्स्ट वन इज E है, E से ओनली A तक एज है, तो A के लिए 1 लिखो, बाकी सब 0 एंट्रीज आ जाएगी. दिस इज नथिंग बट एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर गिवन ग्राफ. हियर दैट adjacency matrix will be of size number of vertices by number of vertices same, means here vertices are 5, so 5 by 5 matrix we have to draw. All the rows and columns will be indicated by the vertex, like A will be indicated by vertices like A, B, C, D, A, B, C, D. ना अगर A से A तक एज है, मतलब अगर कोई लूप है तो वहाँ पर 1 पुट कर दो, नहीं है तो 0 पुट कर दो. जो भी एजेस प्रेजेंट है उनके लिए 1, नहीं है उनके लिए 0 एंट्री यहाँ पर रहेगी. ओके, वन मोर पॉइंट, सी इफ दिस इज अ वेटेड ग्राफ. वेटेड ग्राफ का मीनिंग क्या है? एवरी एज इज हैविंग सम वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट इज वेट ऑफ दैट एज. तो यहाँ पर अगर 50 लिखा है, यहाँ पर 25 लिखा है, समझो. इन दिस वे ऑल दी एजेस विल हैव सम वैल्यूज ऑन इट. तो अगर वैल्यूज है वहाँ पर तो दैट इज नथिंग बट अ वेट. नॉर्मली दैट वेट we have to put at the place of 1 here while
just representing this graph with the help of adjacency matrix. आपको adjacency matrix में weighted graph है तो instead of 1 you have to put their weight. गेटिंग, अगर डायरेक्टेड है तो क्या करना है, अगर डायरेक्टेड है समझो यहाँ से ए और ई के बीच में दिस टाइप ऑफ डायरेक्शन इज देयर, तो ए ई एज इज देयर बट ई ए एज इज नॉट प्रेजेंट, तो ए ई जो है ना तो उसके लिए ए ई जो है ना उसके लिए 1 आ जाएगा, पर ई ए के लिए मैंने जो 1 लिखा है वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इन दिस केस 0 आ जाएगा. This is the concept of adjacency matrix. Getting? So you can draw adjacency matrix like this. This is a very easy representation. Now adjacency list में भी सेम ही रहेगा, वहाँ पर क्या करना है आपको, नोट्स बनाने हैं like this. समझो यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, देन है सी, डी और ई. तो जो भी नोट्स आपने यहाँ पर, जो भी वर्टाइसेस आपने यहाँ पर लिखा है वहाँ से कौन कौन से एजेस है उसके लिए आपको लिस्ट बनानी है और वो लिस्ट यहाँ पर ए को अटैच करनी है इन दिस वे ओनली. तो ए से बी और ई, दीज टू एजेस आर देयर, मीन्स बी और ई, बी एंड ई, दीज टू आर दी एडजेसेंट नोड्स और एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ दिस ए. तो ए से ई एज है और ए से बी है, तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी नोड निकालो, बी विल बी लाइक दिस, और देन नेक्स्ट निकालो ई. तो एक के एडजेसेंट कौन कौन से है, तो बी है और ई है. इन दिस वे यू कैन ड्रॉ एडजेसेंसी लिस्ट. ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, नेक्स्ट दैट्स फाइन. नाउ नेक्स्ट वन सी, बी के लिए एडजेसेंट कौन से नोड है, ए है, सी है, डी है. तो बी ए इज प्रेजेंट, बी सी इज प्रेजेंट एंड बी डी इज प्रेजेंट. सो बी के लिए जो भी एडजेसेंट है उनके लिए लिस्ट बनाओ पहले. दिस इज द लिस्ट. ओके, 3 नोड्स है तो 3 नोड्स यहाँ पर आ जाएंगे. लाइक बी से ए है, बी से सी है और बी से डी है, ए सी है और डी है. तो इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट एडजेसेंसी लिस्ट. नाउ सी से कहाँ पर है, देखो बी है और डी है ओनली, तो बी और डी के लिए लिंक बना और वो इसको अटैच कर दो. नाउ द नेक्स्ट वन इज डी. तो डी से सी और बी के लिए एज है, तो डी से सी और बी के लिए एज है, पहले बी करते हैं. अल्फ़ाबेटिकली यू कैन गो, दैट विल बी इजी टू राइट. नेक्स्ट ई से कौन सी एज है, ओनली ए है, तो ओनली ए ड्रॉ कर दो. अगर कोई भी एज नहीं, अगर समझो यहाँ पर एक वर्टेक्स है एफ, तो दैट इज़ अ आइसोलेटेड वर्टेक्स. दिस इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड वर्टेक्स. अगर कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स है तो वो यहाँ पर लिखना है एफ आपको और डायरेक्टली नल को सेट कर, उसको लिंक करना है, मतलब इन दिस वे आपको यहाँ पर एफ भी लिखना है. अगर है तो आइसोलेटेड वर्टेक्स है तो भी उसको इसमें आपको मेंशन करना है, यहाँ पर भी मेंशन करना है, और ऑल एंट्रीज विल बिकम 0. ओके, नाउ हियर एफ से कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली ऐसा कर दो या फिर यहाँ पर ही क्रॉस कर दो तो भी फाइन. Getting? So in this way you can draw adjacency matrix and adjacency list for given matrix. In the next session we will see how to draw DFS for this given graph. Till then, take care. Bye bye. Thank you.